in a completely different way, and it was okay, I'm out of words. So thanks a lot again, and I hope last year we have had like 3 films reach the screen, so I hope this year all 6 or 8 of you, 10, wow, okay, so all 10 of you get to make your film. Thank you. Request all the fellows to join now. They're still here. Come, join. Ask you to please join. Rohit? Please, Rohit. You have to go sit in the middle. Sorry, we're doing this. We've done this several times before. 4th year. Closer. I don't think this side would come. This is side. No, we are good. Chalo, roll it. Question comes up from India, but you look to the center. Rolling. Storytellers, tell us something about it. Yeah, I'm very, very excited to be a part of this initiative. I think it's a great initiative by Mahindra, and that there's being attention finally being paid to to screenwriters and to storytelling in our films. बहुत important initiative, and I'm very excited to be here. क्या लगता है कितना स्ट्रगल होता है एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए? बहुत बड़ा स्ट्रगल है स्क्रीन राइटर्स के लिए. एज यू नो, अभी तक टिल वेरी रिसेंटली कोई एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं था. देयर वाज नो एजुकेशनल प्रोसेस. इट्स ओनली इन द लास्ट 10-15 years, I think, largely through Anjum Rajabali's initiative, that there's now finally some education for formal education for screenwriters and a formal mentoring process, ताकि उनको डेवलपमेंट में थोड़ा हेल्प हो सके. अक्सर देखा जाता है कि प्रमोशन के दौरान आप लोग भी चाहे डायरेक्टर से चाहे प्रोड्यूसर कभी भी उसको स्पेस नहीं देते हैं राइटर को. जी, आई 100% एग्री विद यू, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल तो उन्हीं का होता है कि आप फिल्म बनाने जाते हैं. जी, आई 100% एग्री कि राइटर्स आर वेरी ऑफन ओवरलुक्ड. आई थिंक इसमें थोड़ा सा फॉल्ट मीडिया का भी है कि मीडिया राइटर्स को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि शायद स्टार्स जैसे ग्लैमरस नहीं होते कभी, सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटर्स को भी जो फेम जैसे कि सलीम जावेद साहब ने जो अचीव किया था एक पीरियड में, बट आई थिंक धीरे धीरे होपफुली राइटर्स को अटेंशन मिलेगा मीडिया से और पब्लिक से भी. And how has the mentoring been from Rakesh ji and Sriram Rajpal? I've not been privy to that process personally. उन्होंने मुझे कभी मेंटर नहीं किया, तो उनकी इंटरेक्शंस. So how do you think the mentoring from the greats like Rakesh? I think it will be fantastic, the kind of experience they are bringing to the table, both Rakesh ji, Sriram, Sridhar, सबके साथ. The experience they are bringing to the table will be really really beneficial to the young writers, ताकि वो जो उनकी experience है वो benefit कर सकें. And the future prospect of it, how do you see? Well, I'm like I said पहले, I'm here for selfish reason कि writers और develop हों, हमारा काम आसान हो, ताकि अच्छी exciting stories पर्दे पे आ सकें. So looking forward to it. सर अभी काम चल रहा है 1-2 कहानियों पे. लेट्स सी कौन सी फाइनली लॉक होती है. जैसे को आपको पता है कि राइटर्स डायरेक्टर्स के अलावा यहाँ पे स्टार्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. तो जैसे कोई स्टार साइन करता है, हमारी पिक्चर भी शुरू हो जाएगी. थोड़ी इंटेंस टाइप ही है. थैंक यू. सुनते चलता है बंगाली में कर. जी सर.
Okay, rolling. एक सेकंड है. Okay, rolling. Sir, tell us something about 100 Storytellers. What it is all about. इट्स स्क्रीन राइटिंग लैब. मतलब जो आज की ज़रूरत है हमारे सिनेमा की कि जो हमारी कहानियाँ हैं हम दुनिया को बोलें. जैसे कहा जाता है कि टू टेल स्टोरीज टू द वर्ल्ड. शुरू से ये प्रथा रही है स्टोरी टेलिंग की कि दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी कहानियाँ, अपने देश की कहानियाँ, अपने प्रांतों की कहानियाँ बताते हैं. तो वैसे ही अब बहुत ऐसा एक वक्त आ गया है जब व्हेन वी टेल इंडियन स्टोरीज टू द वर्ल्ड, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे राइटर्स हैं हम उनको इनकरेज करें. Writers not necessarily from film school, writers not necessarily from Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, but writers from the heartland of India, from B towns, C towns, small centers, ताकि हम छोटे छोटे कस्बों की कहानियाँ दुनिया को बता सकें. We talk about the new bunch of directors and writers of films like Masaan and Damla Ki Haisha, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी हो जाएंगी. They are getting good response. So what is your take on it? ये पहली बार नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा. हमेशा ही ऐसा होता है 50 सालों से कि जिसको हम न्यू वेव बोलते हैं, न्यू टैलेंट बोलते हैं, नई सोच बोलते हैं, नई उम्र की नई फसल बोलते हैं, हमेशा वही सरप्राइज करते हैं. सर भाग मिल्खा भाग सारी दुनिया ने एप्रिशिएट देखा. उसके बाद इस तरह की कौन सी मूवी या क्या कुछ